آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے بائبل میرے اور آپ کے بارے میں کہتی ہے؟ ذرا سنیے گا، اسٹیٹمنٹ سنیے گا کیا ہے. جس طرح کتا اپنی قید کو پھر کھاتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل کی طرف لوٹتی ہے، اسی طرح یہی تمہاری مثل ہے. اپنی گردنیں تلوار کے نیچے دے دیتے تھے لیکن مسیح کا انکار نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسیح نے کیا کیا. عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. خدا کا فضل جو کہ ہمارے بیان سے بالکل باہر ہے، جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، میں اس کے فضل کے لیے اس کی ستائش اور اس کی شکر گزاری کرتا ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ میری آواز جو ہے وہ پیچھے تک جا رہی ہے. اور بے شک جسمانی طور پر میں کمزور ہوں، لیکن روحانی طور پر میں خدا کے جلال کو اور اس کی خوشخبری کو آپ سب کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے پرجوش ہوں. میں چاہوں گا کہ ہم سب زندہ خدا کے کلام کی تعظیم میں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے. ہمارا آج کا مضمون ہے گاسپل شیپ مائنڈ. ایک ایسا ذہن جو کہ خوشخبری کے وسیلہ سے بنا ہو، خوشخبری کے مطابق بنا ہو اور خوشخبری کے لیے بنا. اس کو ہم کہتے ہیں گاسپل شیپ مائنڈ. اور ہم شروع کریں گے ایک سوال سے، اور وہ سوال اس آیت کے اندر ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے کو، اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ وہ آیت ضرور پڑھیں. یہ ٹیکسٹ کی آیت نہیں ہے لیکن یہ آیت ہے. ایمان 7واں باب اور اس کی 56 آیت. ایمان، رسولوں کے اعمال اس کا 7واں باب اور اس کی 56 آیت. خداوند کے زندہ اور بابرکت کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، کہا کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دانی طرف کھڑا دیکھتا ہوں. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. یہ ہے گاسپل شیپڈ مائنڈ، وہ ذہن جو کہ خوشخبری کے وسیلہ سے بدلا ہے. اور جب وہ مرنے کے قریب ہے اور ابھی وہ مرا نہیں ہے اور اپنی جسم کے اندر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہوں اور خدا کو، اس کے بیٹے کو، اس کے فرشتوں کے ساتھ جلال کی حالت میں دیکھتا ہوں. یہ ہے گاسپل، یہ ہے خوشخبری جو کہ ہماری زندگی کو اثر نو بدل دیتی ہے اور اس زمین کی زندگی سے بڑھ کر کے ایک بڑی امید ہمارے لیے رکھ چھوڑی ہے. اور وہ امید صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے کہ ہم ایک وقت آئے گا اس بدن کے وطن کو چھوڑ کر کے ابدی جلال کے وطن میں ہوں گے، جہاں پر ہم اس کے ساتھ ہوں گے. وہ ہمارا خدا ہوگا، ہم اس کے لوگ ہوں گے، ہمارے ماتھوں پر اس کا نام لکھا ہوا ہوگا اور ہم اس کی عبادت اور اس کی ستائش کریں گے. لیکن افسوس، جب ہم اس زمین پر رہتے ہوئے اس کی پرستش اور عبادت نہیں کرنا چاہتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس جگہ پر ہمیشہ کے لیے ابدیت کے اندر خدا کی پرستش کریں گے؟ اب میرے ساتھ حوالہ نکالیے جو ہمارا ٹیکسٹ کا حوالہ ہے. پہلا یوحنا اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں تا 7ویں آیات ہم پڑھیں گے، اور دوسرے باب کی ہم 3 آیت سے لے کر کے 6 آیت تک پڑھیں گے. میں چاہوں گا کہ اپنی بائبل مقدس میں سے آپ لوگ نکالیے میرے ساتھ یوحنا کا پہلا آمقت اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں تا 7ویں آیات ہم پڑھیں گے. خداوند کے پاک کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے. اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. دوسرے باب کی 3 آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں. جو کہ یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں. ہاں،
जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उस में हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरी दरख्वास्त है आप सब अपनी जगहों पे तशरीफ रख सकते हैं। गॉस्पेल शेप्ड माइंड, खुशखबरी के वसीला से बदला गया दिल, खुशखबरी के लिए बदला गया दिल। जितनी देर तक एक जहन खुशखबरी के वसीला से बदलेगा नहीं, उतनी देर तक वो जहन खुशखबरी के मुताबिक और खुशखबरी के लिए जीने का सोचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जिस सांचे में से हम निकलते हैं हम वैसे ही होते हैं। साई जेड़े ने वो जाने जाते ने पट्ठियां ते काम करन ते, सारे पंजाबी समझते हैं। भट्टों के ऊपर आपने ईंटें बनती हुई देखी हैं, और बहुत मर्तबा ईंटें बनाने के लिए पहले एक गारा बनाया जाता है, सख्त मेहनत का काम है। और गारा बनाने के लिए एक सांचा उनको दिया जाता है, जिस सांचे के अंदर उस गारे को डाला जाता है, और जब उस सांचे को निकाला जाता है अंदर से वो ईंट की शक्ल निकल आती है। ऐसे ही अब जिस सांचे में से वो निकला है उसकी शक्ल और सूरत उसी सांचे के जैसी होगी। अगर हम दुनिया और दुनियादारी के सांचे में हैं और उसके सांचे में ढले हुए हैं, तो हम में और दुनिया में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि हम दुनिया के जैसे ही दिखेंगे, क्योंकि हम उसी के सांचे में से निकले हैं। लेकिन अगर हम खुशखबरी के सांचे में से निकलेंगे, मसीह की खुशखबरी अपना असर छोड़ती है। मसीह की खुशखबरी दिलेरी देती है, और मसीह की खुशखबरी आपको खुशखबरी के मुताबिक और खुशखबरी के लिए जीने का फजल भी देती है। ये सवाल है, हमें सोचने की जरूरत है हम किस जगह पर खड़े हैं। मैंने एक कोट लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। गॉस्पेल शेप्ड माइंड इज द माइंड व्हिच इज हेवनली माइंड, नॉट वर्ल्डली माइंड। गॉस्पेल शेप्ड माइंड desires for heaven and do not long for worldly desires। खुशखबरी के वसीला से तब्दील किया गया दिल जो है वो एक तब्दील शुदा दिल है, और वो जहन है जो कि सिर्फ और सिर्फ हेवन के बारे में सोचता है। और हेवन इसलिए है, बहुत से लोगों की हेवन इसलिए है क्योंकि वहां पर शायद उनको हूरें मिलेंगी, या शायद वहां पर उनको सोने की सड़कें मिलेंगी, या दूध की बहती हुई नहरें मिलेंगी। मसीहों की हेवन इसलिए है क्योंकि वहां पर खुदा होगा, हम उसके लोग होंगे और हम उसको देखेंगे। जैसे स्टिफनस मरने से पहले किसको देखता है? खुदा, जो उसके पास जिंदा उम्मीद है, जिस उम्मीद को उससे कोई छीन नहीं सकता, और खुशखबरी के वसीला से उसको ये उम्मीद मिली है। गॉस्पेल शेप्ड माइंड हेवनली माइंड होता है, वो दुनियावी माइंड नहीं होता। और वो जहन जो कि खुशखबरी के वसीला से बदला जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के हजूर में रहने की ख्वाहिश करता है। उसके अंदर से दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशें खत्म होती चली जाती हैं। वो शख्स जिसका जहन गॉस्पेल के मुताबिक बदला है, मैं उसके कुछ अल्फाज आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ जिसने मुझसे मोहब्बत की। खुशखबरी ये नहीं है कि आपको गाड़ियां, कोठियां, कार मिल जाएगी। खुशखबरी ये नहीं है कि आप बीमार हैं तो आपको बीमारी से रिहाई मिल जाएगी। खुशखबरी ये नहीं है कि कोई कैंसर का पेशेंट है तो वो कैंसर से रिहाई पा जाएगा। खुशखबरी ये है कि आप अपनी मौत से निकलकर अपनी जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं, सिर्फ मसीह यीशु पर ईमान के वसीले से। खुदा खुशखबरी है। खुशखबरी का सेंटर खुद खुदा की जात है। खुशखबरी का सेंटर इंसान नहीं है, ये बात मेरी याद रखिएगा। खुशखबरी खुदा की तरफ से थी इंसान के लिए, ये समझने की जरूरत है। और अगर खुशखबरी खुदा की तरफ से इंसान के लिए थी तो इंसान को यह समझने की जरूरत है कि अगर हम
खुशखबरी में नहीं है तो फिर हम बुरी खबर में हैं। और वो बुरी खबर क्या है कि वो वक्त आएगा जब खुदा भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, और जब खुदा कहेगा कि ऐ बदकारों मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, और उस वक्त में लोग बथेरे उससे कहेंगे, ऐ खुदा क्या हमने तेरे नाम से पतरूहों को नहीं निकाला, क्या हमने तेरे नाम से मोजज़े नहीं किए, क्या हमने तेरे नाम से ये काम नहीं किए। यीशु मसीह कहते हैं मैं उस वक्त में उनसे कह दूंगा कि ऐ बदकारों मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, क्योंकि मेरी कभी तुम्हारे साथ वाकफियत नहीं थी। क्यों? क्योंकि तुम मेरे आसमानी बाप की मर्जी के मुताबिक कभी नहीं चले। खुशखबरी है ही उनके लिए जो गुनाह में है, जो अब्दी मौत में है, और हमें उस खुशखबरी की अहमियत को समझने की जरूरत है। हमारे टेक्स्ट के अंदर यूहन्ना जो खत लिख रहा है, उसके खुशखबरी को बयान करने का तरीका देखिए। वो खत का आगाज कैसे करता है। वो कहता है उस जिंदगी के कलाम की बाबत। किसकी बाबत? जिंदगी के कलाम की बाबत, जो इब्तिदा से था, और ये वही कलाम है और ये वही जिंदगी है जिस जिंदगी को स्टिफनस अपने मरने से पहले देख रहा है। और वो कहता है कि मैं आसमान को खुला हुआ मसीह यीशु को उसके जलाल में उसके फरिश्तों के साथ देखता हूं। और यूहन्ना रसूल उस खुशखबरी को बयान करता है कि उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था, और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। और वो कहता है कि ये जिंदगी जाहिर हुई, ग्लोरीफाइड बॉडी के अंदर नहीं, हम जैसी इंसानी जिस्म के अंदर ये जिंदगी जाहिर हुई। क्यों? क्योंकि वो हमारे गुनाहों की खातिर मरा, हमारे हिस्से की जहन्नुम को मसीह यीशु ने सलीब पर सहा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। कलाम में लिखा है, मेरी बात नहीं है, कलाम की बात है। और क्या कहता है? ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। किसकी गवाही देते हैं? मसीह यीशु की, जो कि उस खुशखबरी का सेंटर है, जिसके वसीला से ये खुशखबरी हम तक पहुंची। खुदा की खुशखबरी, खुदा ने अपनी खुशखबरी को खुद प्लान किया, खुदा ने अपनी खुशखबरी को खुद इनिशिएट किया, और खुदा ने अपनी खुशखबरी को हम तक पहुंचाया। और मसीह ने सलीब पर कहा कि तमाम हुआ। और जब मसीह ने सलीब पर कहा कि तमाम हुआ, इसका मतलब है कि ऐ मौत तेरा डंग कहां रहा, अब मौत का जोर नहीं है, अब ईमान के वसीला से जिंदगी है, बशर्ते कि हम ईमान लेकर के। अगर हम ईमान लेकर के नहीं आते हैं, अभी इसी वक्त आप मरेंगे तो आप जहन्नुम में होंगे। लेकिन अगर आप मसीह पर ईमान लेकर के आते हैं तो उस ईमान के वसीला से आज अगर अभी इसी वक्त आप मरते हैं तो उस ईमान के वसीला से आप अपनी जिंदगी में होंगे, जिस उम्मीद को इंसानी तलवार खत्म नहीं कर सकती, जिस उम्मीद को तेल के गर्म कड़ाहे खत्म नहीं कर सकते। मसीही अपनी उस उम्मीद के ही वसीला से जाने जाते थे, जो उम्मीद उनको मसीह यीशु के वसीला से मिली। वो अपनी गर्दनें तलवार के नीचे दे देते थे, लेकिन मसीह का इनकार नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मसीह ने उनके लिए क्या किया है। और यूहन्ना कहता है कि ये जिंदगी जाहिर हुई, हमने उसको देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। भाई और बहनों, हमें समझने की जरूरत है। आरसी सप्रोल खुदा का खादिम कहता है कि कोई भी खुदा की बादशाही में बगैर तौबा के जा नहीं सकता। अपने गुनाहों से उसको दूर भागने की जरूरत है, और अपने यकीन को सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु पर रखने की जरूरत है। कोई शख्स खुदा की बादशाही में बगैर तौबा के जा नहीं सकता। तौबा क्या है? किसको तौबा की जरूरत है? उस शख्स को जो अपने गुनाह को गुनाह नहीं समझता, वो शख्स जो कि अपनी बुराई में रहता है और अपनी बुराई को बुराई नहीं समझता। हम सब गुनाह करते हैं, हम सब गुनाह के हाथों में बिके हुए हैं। बाइबल मेरे और आपके बारे में क्या कहती है? बाइबल मेरे और आपके बारे में कहती है, जरा सुनिएगा, स्टेटमेंट सुनिएगा क्या है। जिस तरह कुत्ता अपनी कैर को फिर खाता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल की तरफ लौटती है, इसी तरह यही तुम्हारी मिसल है। इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से गुनाहगार इंसान को तौबा की जरूरत है। किससे तौबा की जरूरत है? अपने गुनाह से तौबा की जरूरत है। लेकिन गुनाह से वो कैसे बच सकता है? सिर्फ मसीह यीशु पर अपना ईमान रखने के वसीला से।
याद रखें, या तो मसीह आपके लिए सब कुछ है या तो मसीह आपके लिए कुछ भी नहीं है। और हम अपने गुनाह से मोहब्बत रखते हैं। अब जरा मैं आपको 2 मिनट के लिए आपका गुनाह अगर दिखाऊं, आप में से कौन है जो बड़े वसूख के साथ मुझे ये कह सकता है कि मैं जिंदगी में गुनाह नहीं करता? अपना हाथ दिखा सकते हैं अगर आप गुनाह नहीं करते। हाँ, आप गुनाह करते हैं। हाँ, हम गुनाह करते हैं। हाँ, हमसे गुनाह सरजद होता है। गुनाह एक संगीन हकीकत है, इसीलिए तो बाइबल कहती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। जरा सोचे, जो कुछ जिंदगी के अंदर आपने किया या जो कुछ करने का इरादा रखते हैं, शायद आपके साथ बैठे हुए भाई को उस बात का नहीं पता, लेकिन उस खुदा को जो कि इब्तिदा से है, जो कहता है कि इब्तिदा और इंतहा मैं हूं, वो हमें जानता है। वो हमारे गुनाह से वाकिफ है। जब वो हमारे गुनाह से वाकिफ है, एक वक्त आएगा जब हमारा हाल उसके सामने जाहिर होगा, फिर क्या होगा? हम किस जगह पर होंगे? हमें सोचने की जरूरत है, तौबा की जरूरत है। तौबा क्या है? और तौबा की जरूरत, हमने इस चीज को देखा कि तौबा की जरूरत एक गुनाहगार इंसान को है। तौबा कहते हैं, तौबा के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज है मेटानोया। लेकिन ये मेटानोया लफ्ज अकेला नहीं है, इसी के मजमूए में इसी के साथ 2 और यूनानी लफ्ज है जिनका मतलब है एपिस्ट्रेफो और मेटामेलोमाय। मेटानोया का मतलब है जहन की तब्दीली जो जिंदगी की तब्दीली के ऊपर असर करे। एक जहन की तब्दीली जो जिंदगी की तब्दीली के ऊपर असर करे। लेकिन अगर जहन तब्दील नहीं है तो आपकी जिंदगी भी तब्दील नहीं होगी, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसको आप फिजिकली करने की कोशिश करते हैं। गुनाह हमारी सोच में आता है और हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं। बाइबल के अंदर क्या लिखा है? अगर तू किसी औरत को बुरी नजर से देखे तो तू अपने दिल में ज़िना कर बैठा। वो ख्याल, वो कहता है कि अगर वो लस्टफुल थॉट तेरे अंदर है तो तू गुनाह कर बैठा। गुनाह ये नहीं है कि हम फिजिकली जाकर के ज़िना करें, उसके बारे में सोचना गुनाह है। मेटानोया जिंदगी की तब्दीली, जहन की तब्दीली जो जिंदगी की तब्दीली के ऊपर असर करे और वो तब्दीली वाज़ेह तौर पर नजर आए। एपिस्ट्रेफो का मतलब क्या है? एपिस्ट्रेफो का मतलब है रिटर्न, वापस जाना, वापस मुड़ना, घूमना, फिर जाना। पहले अगर मैं इस तरफ देख रहा था, अब मैं इस तरफ नहीं देखूंगा, अब मैं इस तरफ देखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी के अंदर गुनाह का एहसास पैदा हुआ है। आई रिपेंट एंड आई रिटर्न। और मेटामेलोमाय का मतलब है टू फील रिग्रेट एंड टू बी सॉरी। अब ये क्या है? रिग्रेट, रिटर्न, रिपेंट। हम अपने गुनाह से उस वक्त तक बाज नहीं आएंगे जितनी देर तक हम अपने गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे। और वो शख्स जो अपने गुनाह को गुनाह नहीं समझता वो कभी अपने गुनाह पर पछताता नहीं। और जो अपने गुनाह पर पछताता नहीं है वो कभी उम्मीद को नहीं ढूंढता, क्योंकि उसके लिए उसकी जहन्नुम जो है वो बड़ी ठंडी है। वो कभी भी रिटर्न नहीं करेगा। और जो शख्स अपने गुनाह को गुनाह नहीं समझेगा वो अपने गुनाह पर पछताएगा। जो अपने गुनाह पर पछताएगा नहीं वो कभी उस गुनाह के लिए अपनी उम्मीद को नहीं ढूंढेगा, क्या मेरे लिए कोई उम्मीद है। और जो उम्मीद को ढूंढेगा नहीं वो कभी भी तौबा नहीं करेगा। आप में से कितने हैं जो अपने गुनाह को गुनाह समझते हैं? आप में से कितने हैं जो गुनाह से नफरत इस वजह से करते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि यही वो गुनाह था जिसकी वजह से मसीह से नहीं करते। या तो मसीह आपके लिए सब कुछ है या तो मसीह आपके लिए कुछ भी नहीं है। God is most glorified in the gospel-shaped mind because the gospel-shaped mind is most satisfied in Him. खुदा को सबसे ज्यादा जलाल तब मिलता है जब एक ज़हन खुशखबरी के वसीला से मुकम्मल तौर पर असर नो बदल जाता है और उस ज़हन की तब्दीली जो है वो जिंदगी की तब्दीली के ऊपर असर डालती है। और जब वो असर डालती है तो वही ज़हन, वही जिंदगी खुदा के अंदर अपनी सेटिस्फेक्शन को ढूंढती है। अगर हमारा ज़हन नहीं बदला तो हम खुदा के अंदर सेटिस्फेक्शन को कभी भी पा नहीं सकेंगे।
اور اگر ہم خدا کے اندر سیٹسفیکشن کو نہیں پائیں گے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک مچھلی کو آپ پانی سے باہر نکال دیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ تڑپتی ہے، تڑپتی ہے، تڑپتی ہے، اور پھر کیا ہوتی ہے؟ مر جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ایک انسان خدا کو نہیں جانتا، خدا جو کہ اس کا ماخذ ہے، اوریجن ہے، اس کو نہیں جانتا، تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے اندر توبہ نہیں کی۔ میٹانویا، ذہن کی تبدیلی جو زندگی کی تبدیلی کے اوپر اثر ڈالتی ہے۔ خدا ہمیں ہمارا گناہ دکھاتا ہے تاکہ ہم اپنے گناہ سے نفرت کریں، اور اگر آپ اپنے گناہ سے نفرت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی کے اندر بھی کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی۔ لیکن بائبل ہمیں دکھاتی ہے، میری بائبل مجھے دکھاتی ہے، آپ کی بائبل آپ کو دکھاتی ہے کہ خوشخبری اثر ڈالتی ہے، خوشخبری زندگی کو بدلتی ہے، خوشخبری ہمارے ذہنوں کو بدل کر کے رکھتی ہے۔ خوشخبری جو ہے ہمیں مکمل طور پر بدلتی ہے۔ لیکن خوشخبری ہمیں کب بدلتی ہے؟ کیا ایک مچھلی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنی گیلی ہے؟ یہ سوال ہے آپ سے، خاموش نہیں بیٹھنا، مجھے جواب دے دیں۔ کیا ایک مچھلی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنی گیلی ہے؟ آواز نہیں آئی، وہ تو رہتی پانی میں، اس کو کیا پتا کہ وہ کتنی گیلی ہے، کتنی گیلی ہے؟ بالکل اسی طرح سے ایک گناہ گار انسان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس قدر گناہ گار ہے، اسی لیے وہ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ پیورٹنز کا ایک بہت خوبصورت فریز تھا، پیورٹنز کہتے تھے we don't know the sinfulness of sin، وہ گناہ کو اتنا سیریس لیتے تھے، اور یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم گناہ کی برائی سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ہم گناہ سے کراہیت نہیں کھاتے ہیں، اسی لیے ہم گناہ کو انجوائے کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر مزہ ہے، وقتی مزہ، اسی لیے ہم گناہ کو کیا کرتے ہیں؟ انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن کتنی دیر تک انجوائے کرتے ہیں؟ کتنی دیر تک وہ مزہ ہے؟ ان دی اینڈ ہر چیز کا ایک ریوارڈ ہے، اور گناہ کی سزا جہنم، جہنم، جہنم۔ لیکن اگر گناہ کی سزا جہنم، جہنم، جہنم ہے تو خوشی کی خبر یہ ہے کہ وہ جہنم، وہ جہنم، وہ جہنم مسیح نے سہ لی ہے۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اور جو کوئی اس بات کو سمجھے گا کہ مسیح نے میرے حصے کی جہنم سلیب پر سہی ہے، میں جہنم کا حقدار تھا، میرے اوپر وہ غضب تھا، جب تک ہم اس پوائنٹ پہ نہیں پہنچیں گے اتنی دیر تک ہم لوگ کبھی بھی خدا کی بڑی خوبی کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ لیکن جو کوئی اس خوشخبری کو جان جائے گا کہ جہنم، جہنم، جہنم مسیح نے سہ لی ہے، اب زندگی، زندگی، زندگی صرف ایمان کے وسیلہ سے ہے، وہی شخص بچ جائے گا۔ تو اب ہم تھوڑا سا فرق دیکھ لیتے ہیں، ایک دنیاوی ذہن کے اندر اور وہ ذہن جو کہ ریجنریٹ، وہ دل، وہ ذہن، وہ سوچے، وہ خیالات، وہ زندگی جو کہ خدا کے فضل کے وسیلہ سے ریجنریٹ ہوئی ہے، اب ہم اس کے اندر کچھ فرق دیکھتے ہیں۔ اب میں اپنے ٹیکسٹ کی طرف آؤں گا۔ لکھا ہے کہ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ خدا نور ہے۔ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خدا کو نور کے طور پر جانتا نہیں ہے۔ نور کا مطلب ہے پاکیزگی۔ لائٹ، بائبل میں جس جگہ پر لفظ لائٹ استعمال ہوا ہے وہ پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے، اور بائبل خدا کی پاکیزگی کے اوپر اتنا زور دیتی ہے، وہ کہتی ہے قدوس، 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 خدا پاک ہے، خدا پاک ہے، خدا پاک ہے۔ کسی بھی جگہ پر بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ خدا محبت، محبت، محبت ہے، لیکن بائبل میں یہ لکھا ہے خدا پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے، خدا الگ ہے، خدا الگ ہے، خدا الگ ہے، خدا میں گناہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، اور خدا گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے اس کی ذات میں تاریکی نہیں ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی گناہ میں گزاریں گے تو ہم ضرور مریں گے، کیونکہ بائبل کا خدا اگر وہ پاک ہے، پاک خدا کی پاکیزگی اس چیز میں نظر آتی ہے کہ وہ گناہ کو ختم کرتا ہے۔ لیکن ہمیں پاکیزگی میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک ورلڈلی ہارٹ جو ہوگا، دنیاوی دل جو ہوگا، یا وہ دل یا وہ ذہن جو کہ خوشخبری کے وسیلہ سے بدلا نہیں ہوگا، میٹانویا جس کی زندگی کے اندر نہیں ہوگا، ذہن کی تبدیلی جس کی زندگی کے اندر نہیں ہو گئی، وہ خدا کو نور کے طور پر، خدا کو الٹیمیٹ ایسنس آف رائچسنس اور خدا کو الٹیمیٹ ایسنس آف ہولینس وہ کبھی بھی نہیں جانے گا۔
ये दुनियावी शख्स की मिसाल है, इसीलिए वो गुनाह से नफरत भी नहीं करेगा। लेकिन जिसका दिल खुशखबरी के वसीला से, जिसका ज़हन खुशखबरी के वसीला से बदला होगा, वो खुदा को और उसकी पाकीज़गी को जानेगा, और वो इस चीज़ को समझेगा कि खुदा की ज़ात में ज़रा भी तारीकी नहीं है। और अगर खुदा की ज़ात में तारीकी नहीं है, मैं कैसे उस तारीकी में ज़िंदगी गुजार सकता हूँ? मैं कैसे उस गुनाह में ज़िंदगी गुजार सकता हूँ जिस गुनाह की वजह से किसी से नहीं पता? मैं कैसे उस गुनाह से मोहब्बत कर सकता हूँ? ये समझने की ज़रूरत है। तो वो जो रीजेनरेट नहीं है और वो जो रीजेनरेट है, ये फ़र्क है कि वो खुदा को नूर के तौर पर नहीं देखेगा, लेकिन जिसकी जिंदगी गॉस्पेल के वसीला से बदली होगी, वो खुदा को जानेगा और कहेगा कि खुदा पाक है। कौन सा इंसान है जो ये सुनना चाहता है कि मैं गुनाहगार हूं? क्या कैंसर का पेशेंट ये सुनना चाहता है कि उसको कैंसर है? सुनना चाहता है? कभी किसी पेशेंट के पास आप जाकर के कहें, वो अपने कानों के ऊपर हाथ रखेगा, कहेगा कि मुझे मत बताओ कि मैं गुनाहगार हूं। बिल्कुल इसी तरह से एक गुनाहगार इंसान ये नहीं सुनना चाहता कि वो गुनाहगार है। छठी आयत, अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चले, तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। बहुत मर्तबा बहुत सारे लोग जिनकी जिंदगी बदली नहीं होती खुशखबरी के वसीला से, उनके क्लेम्स बहुत बड़े होते हैं। वो कहते तो है मैं खुदा को जानता हूं, लेकिन क्या वाकई में खुदा को जानता हूं? खुदा को जानने का असर कहां से नजर आता है? उनकी जिंदगी के वसीले, जहां पर खुदा के लिए एक रेफरेंस हो। आज जहां पर प्राइम मिनिस्टर आ जाए और मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे नहीं सुनेंगे, प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुनने के लिए सब दौड़ते हैं। क्यों? उसको लोग बड़ा समझते हैं ना, बड़ा बंदा है। मैं इधर खड़ा होगा, मैं जितने मर्जी ललकरे मार मार के यहाँ पर बातें कर लूं, जो मर्जी कर लो, तो कहना छड्डो इन्हें की गल करनी है, वो साढ़े फायदे की गल करेगा। हो सकता है कोई नवा बजट करके साढ़े सामने रख दे, आप उसको बड़ा समझते, आप उसको सुने। लेकिन खुदा खुदा है, खुदा के साथ आप इंसानों वाला सलूक नहीं कर सकते। खुदा सॉवरेन है और हमें खुदा की सॉवरेनिटी में जिंदगी गुजारनी है, उसको कादिर मुतलक समझना है और उसके जलाल को हमें बेहतरीन तरीके से समझने की जरूरत है। तो वो दिल, वो ज़हन जो बदला नहीं होगा, वो क्लेम तो करेगा खुदा को जानने का। वो कहेगा भी कि शायद मैं खुदा को जानता हूं, शायद चर्च भी जाता हो, शायद चर्च में बैठ करके ताली भी मारता हो, शायद हदिया भी दे देता हो, शायद पादरी घर पे आता हो तो पादरी के हाथ के ऊपर पैसे भी रख देता हो, इस तरीके से अच्छे काम समझ के। लेकिन हमारे अच्छे काम हमें बचा नहीं सकते, रिलीजियस ड्यूटीज आपको नहीं बचा सकती जब तक कि वो खुदा की मोहब्बत से भरी हुई ना हो। कितनी मर्तबा हम चर्च इस सोच से जाते हैं कि मैं खुदा को जानने की गर्ज से चर्च जाऊंगा, मैं इस घर से जाऊंगा कि मैं बड़े खुदा को जानूं कि ही इज माई लॉर्ड, ही इज माई सेवियर, ही इज माई किंग। और मैं नाचीज बंदा हूं, मैं अंधा था लेकिन उसने मुझे चुन लिया ताकि मैं देख सकूं, मैं मुर्दा था उसने मुझे जिंदा किया ताकि मैं अपनी जिंदगी के अंदर उसकी तरफ रजू करूं। आपकी मसीहत, हम सब की मसीहत, मेरे समेत हम सब की मसीहत हमारी क्लेम से बड़ी होनी चाहिए। और दूसरी तरफ हम जो क्लेम करते हैं, अगर क्लेम करते भी हैं तो जिंदगी से साबित होना चाहिए कि हाँ मैं मसीह हूं, क्योंकि इसी से नजर आएगा कि हमारी उसके साथ शराकत है। क्योंकि वो क्या कहता है, अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चले तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। बहुत मर्तबा लोग किसी दूसरे के सामने गुनाह नहीं करते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी के अंदर अपने गुनाह को जी रहे होते हैं। शायद लोगों की नजर में मैं एक राइचियस इंसान हो सकता हूं, रास्तबाज इंसान हो सकता हूं, लेकिन अपनी जिंदगी के उन मोमेंट्स का क्या जिन मोमेंट्स में मुझे कोई दूसरा इंसान नहीं देख रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद में उसके सामने खड़ा होकर के मैं तो एक मसीही भी बन करके दिखा देता हूं। अफसोस, क्लेम्स नहीं होने चाहिए। हकीकी ईमान आपको चीजें करने की अल्लाह ले जाता है। वो शख्स कि आखिर में मैं उस शख्स का आपको बताऊंगा कि वो ऐसी नहीं ये बात कर रहा है। आगे क्या लिखा है? सातवीं है, लेकिन अगर हम नूर में चले जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है। नूर में चलने से क्या मुराद है? पाकीज़गी में बढ़ना,
खुदा पाक है, मैं पाकीज़गी की ख्वाहिश रखता हूँ। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। बाइबल कहती है पाक बनो जिस तरह के तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। बाइबल कहती है बस चाहिए ये कि तुम भी कामिल हो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। गॉस्पेल शेप्ड माइंड, मैंने क्या लिखा था? longs for heaven and do not longs for the worldly desires. Gospel shaped mind जो है वो खुदा के साथ पाकीज़गी में चलने के बारे में ही सोचेगा और कोशिश करेगा कि नहीं ये गुनाह है, मैं नहीं करूंगा। अगर किसी के साथ धोखा है, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, मैं ड्यूटी के ऊपर खड़ा हूँ, ड्यूटी के ऊपर मेरी करके मुझे 10,000 दे रहा है कि मेरा नंबर पहले लगवा दो, मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये गुनाह है। जो सिस्टम है मैं सिस्टम के अंदर रहूंगा। आप छोटी से छोटी चीज के अंदर सेंसिटिव होते हैं और आप समझते हैं कि ये गुनाह की नफरत है, क्योंकि आप खुदा की पाकीज़गी को जानते हैं और आप ये समझते हैं खुदा पाक है और उसकी जात में जरा भी तारीकी नहीं। तो रीजनरेट हार्ट और गॉस्पेल शेप्ड माइंड जो होगा वो इस तरीके से छोटी चीज के अंदर भी वो खुदा के डर के अंदर रहेगा, क्योंकि हकीकी हिकमत है। बाइबल कहती है, क्या कहती है? खुदा का खौफ हिकमत है और बदी से नफरत खैर है। अयूब 28 आखिरी 2 आयत। बाइबल कहती है खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। हमें समझने की जरूरत है। अब दुनियावी दिल जो होगा, दुनियावी दिल की जिंदगी के अंदर जो स्क्रिप्चर्स के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, दुनियावी दिल उसके तजाद में जाएगा। बाइबल के अंदर जो बातें लिखी है दुनियावी दिल उसके तजाद में जाएगा और उसके तजाद में जिंदगी गुजारेगा। लेकिन गॉस्पेल शेप्ड माइंड यही कहेगा कि स्क्रिप्चर मेरे लिए जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है, ये लिटरल है, इसके मुताबिक मुझे जिंदगी को बदलना है, क्योंकि ये मुझे जिंदगी की राह पर दाऊद क्यों कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। दाऊद क्यों कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं? क्यों? क्योंकि ये लिविंग रियलिटी बन जाती है उसके लिए जिसका ज़हन गॉस्पेल शेप्ड माइंड होता है। अगर हम गॉस्पेल शेप्ड माइंड नहीं है, खुशखबरी के वसीला से हमारा ज़हन नहीं बदला, तो कैसे मुमकिन है कि हम इसके मुताबिक जिंदगी गुजारें? हाँ, फिर मैं पढ़ूंगा जरूर, लेकिन जिंदगी से फर्क नहीं होना कोई भी। जिन्ना मर्जी पढ़ लो, जिन्ना मर्जी साफ करके उचिया जगह ते इनू रख लो, अगर एदी इज्जत तुम्हारी जिंदगी च नहीं है कि तुसी ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ अमल नहीं करते। कितनी मर्तबा हम अपने दिल के अंदर कदूरत रखते हैं अपने भाई के लिए, कितनी मर्तबा हम अपने दिल के अंदर बुग़्ज़ रखते हैं, हम नफरत रखते हैं, हम जुदाइयां डालते हैं, तफरके रखते हैं। बाइबल कहती नहीं कहती। जो शख्स जिसकी जिंदगी कलाम के मुताबिक बदली होगी वो कहेगा कलाम जो कहते हैं मैं वो करूंगा। कलाम कहती है सुलह के तालिब रहो। बाइबल कहती है कि आपस की मोहब्बत के सिवा किसी और चीज में एक दूसरे के कर्जदार ना रहो। बाइबल आपको लिविंग रियलिटी बताती है। वो लिविंग रियलिटी क्या है? क्या है? मसीह इंसान बन करके इस जमीन पर आया, इंसान बन करके आपको नमूना दिया। क्या नमूना दिया? कि खुदा के जलाल के लिए जिए जाने वाली जिंदगी ऐसी है, ऐसे जिए। और बाइबल में से आप उसकी जिंदगी को देख सकते हैं कि मसीह कैसे जिया, बेगुनाह जिंदगी, बेदाग जिंदगी। मेरे और आपके लिए यही जरूरी है कि बेदाग जिंदगी मसीह के मुताबिक जिए, मसीह के नक्शे कदम पर चले, क्योंकि बाइबल कहती है ना मसीह के नक्शे कदम पर चलो। पहला पत्रस 2 बाब 21 आयत लिखा है, क्योंकि उसे दुख उठा उठा करके तुम्हें एक ऐसा नमूना दिया है कि उसके नक्शे कदम पर चलो। बाइबल स्क्रिप्चर्स आपके लिए लिविंग रियलिटी बन जाती है, और तब आपकी और खुदा की शराकत होती है जब आप स्क्रिप्चर्स के सांचे में ढलते चले जाते हैं। शुरू एक वाली मिसाल याद रखनी है, जो जिस सांचे में से निकलता है वो वैसा होता है। अगर हम दुनियादारी के सांचे में से निकलेंगे, मुझ में और दुनिया के इंसान में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, तो मैं अब मेरे क्लेम से मैं जितना मर्जी कहता रहूं क्रिश्चियन हूं, मैं किसी को शनाख्ती कार्ड भी निकाल के दिखा दूं, ये देखिए ईसाई लिखा हुआ है इसके आगे, नहीं है क्रिश्चियन, जो मर्जी कहते रहो। आपकी मसीहत आपके क्लेम से बड़ी होनी चाहिए। आपकी मसीहत जो है वो स्क्रिप्चर्स के मुताबिक होनी चाहिए, लिविंग रियलिटी होनी चाहिए, खुदा के कलाम के मुताबिक होनी चाहिए। जो खुदा का कलाम कहता है, खुदा का कलाम मसीह की जिंदगी दिखाता है। रोल कुछ आपको मसीह की जिंदगी दिखाएगा कि मसीह ऐसा था, तुमने ऐसा नहीं होना, तुमने मसीह के जैसा होना, दुनिया के जैसा नहीं। ये समझने की जरूरत है। क्राइस्ट लाइकनेस, जो रीजनरेट गॉस्पेल शेप्ड माइंड होता है, वो क्राइस्ट लाइकनेस में बढ़ता चला जाता है, वो वर्ल्डलीनेस से अलग होता है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। शहीदाने रोम किताब आपने शायद आप में से बेशतर ने पढ़ी होगी। उसके अंदर लिखा है एक शख्स था मिस्र, वो पहले वो पेगन था, किसी खुदाओं को नहीं, बहुत से खुदाओं को मानता था वो, और वो एक मशहूर जंगजू था, और ऐसा जंगजू कि
कोई भी उसके सामने आता तो मतलब वो डरता नहीं था 8-8 10-10 बंदों को मार देने से, क्योंकि वो जंग करने वाला बंदा था। अब रोम के लोग जो थे उन्हें खून देखने का बड़ा शौक था, तो कोलोसम जो था जहां पर वो बड़ी बड़े गोल दायरे से होते थे और सारा रोम शहर बैठ करके वहां पर खूनी जंगें देखा करता था। तो मिस्र एक शख्स था जिसकी जिंदगी उस तक खुशखबरी पहुंची, उसकी जिंदगी बदल गई। और मिस्र वो शख्स था, वो खड़ा था और उसकी जिंदगी खुशखबरी के वसीला से बदली और रोम सारा खड़ा होकर के देख रहा है। और मिस्र के पास आया जाता है और उसको कहा जाता है कि इस शख्स को तुम मार दो। उसी जगह पे अपनी तलवार फेंकता है, कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूं, खुदा ने इसको भी अपनी सूरत में बनाया है, मैं इसको कत्ल नहीं करूंगा क्योंकि बाइबल के मुताबिक कत्ल नहीं गुनाह है। और पूरा रोम बादशाह कह रो गजब से भर जाता है, इसने मेरे ऑर्डर को इसने इनकार कर दिया, मेरे हुक्म को इसने इनकार कर दिया। दूसरा शख्स जो जख्मी होता है, मरने के करीब होता है, वो तलवार उठा करके मिस्र को मार देता है। लेकिन एक शख्स, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं थी उसकी जिंदगी के अंदर, क्योंकि स्क्रिप्चर्स उसके लिए लिविंग रियलिटी थी। वो कहता था बाइबल ने जो कहा है, जो लिखा है, मेरा दिल बदल गया, मेरा जहन बदल गया, मैं खुदा के खिलाफ गुनाह नहीं करूंगा। चाहत और कोशिश को उसने अपनी जिंदगी से दिखाया। ये है गॉस्पेल शेप्ड माइंड, ये है मेटानोया का काम। जब आपकी जिंदगी के अंदर बदलती है तो जहन की तब्दीली जिंदगी की तब्दीली के ऊपर असर डालती है, और वो असर, वो तब्दीली फिर सारी दुनिया को नजर आती है। इसीलिए मसीह यीशु ने कहा था मैं दुनिया का नूर हूँ, और फिर मसीह कहता है तुम दुनिया के नूर, और नूर तारीकी में चले। आपके गिर्द बहुत तारीकी है। तारीकी किस चीज की है? होमोसेक्सुअलिटी बढ़ती चली जा रही है, LGBTQ बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप्स बढ़ते चले जा रहे हैं। गुनाह को हमें स्वीट डिश के तौर पर दिखाया जा रहा है कि ये तो कुछ नहीं है, खैर है, नॉर्मल है। लेकिन उस टाइम के अंदर बिब्लिकल वैल्यूज कहाँ पर? बिब्लिकल वैल्यूज से तब वाकिफ होंगे बाइबल पढ़ेंगे। बाइबल नहीं पढ़नी तो बिब्लिकल वैल्यूज से वाकिफ कहाँ पे होंगे? बाइबल हम लोगों ने सिर्फ इसलिए रखी है कि घर के अंदर पता हो क्रिश्चियन हूं, कपड़े के अंदर लपेट के बस। ये जो मसीह होता है, गॉस्पेल शेप्ड माइंड होता है, वो स्क्रिप्चर्स को वैल्यू करता है। क्यों स्क्रिप्चर्स को वो क्यों वैल्यू करता है? क्योंकि कलाम में तो लिखा हुआ है, अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो उससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए। बाइबल में लिखा है, टेक्स्ट में लिखा है, जो मेरा टेक्स्ट था, असाइन टेक्स्ट था महमूद, उसमें से आपको पढ़ के सुना रहा हूं। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, उसके हुक्म कहां से पता लगता है? उसके कलाम में से। उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी जो है हमने गुजारनी है। गॉस्पेल जो है वो एक कमांड है, और इस जमीन के ऊपर सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है तो वो गॉस्पेल को रिफ्यूज करना है। शायद ये बात कुछ लोग इससे एग्री करें, कुछ ना करें, लेकिन गॉस्पेल इज अ कमांड। हम दुनिया के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते, हमें मसीह की सूरत में ढलते चले जाना है। दुनियावी ज़हन के अंदर नो डिजायर फॉर हेवन। क्यों? दुनियावी ज़हन क्या होगा? दुनियावी ज़हन हेवन के अंदर भी दुनिया घुसा देगा। हेवन के अंदर भी हुरें होंगी, हेवन के अंदर भी सेक्सुअल रियलिटीज होंगी कि बस यही सब कुछ होगा जो इस दुनिया में होता है। हेवन के अंदर भी खाने पीने वाली तड़प ही होगी। लेकिन एक मसीही की हेवन जो है वो हेवन इसलिए है क्योंकि वहां पर खुदा है, खुदा की वजह से वो है। और हम कितना डिजायर करते हैं अपने अंदर कि मैं खुदा के साथ। गॉस्पेल शेप्ड माइंड जो है वो गॉस्पेल के हीरो को ही देखता है जो कि खुद खुदा है। हमारी निजात के अंदर अगर हमारा कोई रोल है तो वो सिर्फ ये रोल है जो हम गुनाह करते हैं। गॉस्पेल का हीरो खुदा है, उसने करके दिखाया। क्यों? यशायाह 64:4 आयत में क्या लिखा है? ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा कि जो अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाया। मसीह ने करके दिखाया, उसने कहा तमाम। समझने की जरूरत है, अगर समझेंगे। अब गॉस्पेल शेप्ड माइंड जो है वो असर नो हमें बदल देता है। बदली हुई जिंदगी का असर जो होता है वो हमारी इस जिंदगी के अंदर नजर आता है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो आयतें बड़ी पता है, हमें पता, हमें सब कुछ होता है। लेकिन मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि रीजनरेशन का मसला। लेकिन रीजनरेशन हमारा काम नहीं है, वो खुदा का काम है। और हमें इस चीज को समझना है कि हमें खुदा को जानना है, हम इसी के लिए बनाएंगे। अगस्टीन जो अपने गुनाह को जान गया था वो कहता है, ऐ खुदा तूने हमें अपने लिए बनाया, हमारे दिल उस वक्त तक बेसुकून है जब तक कि वो तुझ में सुकून ना पा जाए।
गॉस्पेल शेप्ड माइंड अपनी सेटिस्फैक्शन को सिर्फ खुदा में ढूंढता है। इसीलिए मैंने एक कोट आपके सामने पढ़ा था, गॉड इज मोस्ट ग्लोरीफाइड इन द गॉस्पेल शेप्ड हार्ट बिकॉज द गॉस्पेल शेप्ड हार्ट इज मोस्ट सेटिस्फाइड इन हिम। वो उसमें सेटिस्फैक्शन ढूंढता है। एक शख्स था, अब मैं बाइबल के अलावा एक शख्स की मिसाल देता हूँ कि आप कहेंगे कि ठीक है बाइबल से लोग नहीं होते बड़े पाप ने उन्होंने जिंदगी हो सकता है बदल देती हुई, मैं तो बाइबल से बाहर था बंदा, मेरे ऊपर किवें दा असर होना। बाइबल हर शख्स की जिंदगी के ऊपर असर डालती है। खुशखबरी बड़ी है। अब पॉलीकार्प जो था, यूहन्ना जिसका हमने टेक्स्ट पढ़ा, पॉलीकार्प जो था उसका शागिर्द था और पॉलीकार्प को जो है सजा सुना दी गई कलाम सुनाने की उसने, और फिर उसने आवाज उठाई। वो खुदा खादिम था, बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा था। रोमन एम्पायर जो था वो बड़े स्ट्रॉन्ग एम्पायर था, वो मसीहियों को कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन मसीहत फिर भी बढ़ती चली जा रही थी। तो प्रो कौंसल ने जो था पॉलीकार्प को बुला लिया, उस टाइम की जो कौंसल थी, और प्रो कौंसल ने जब पॉलीकार्प को बुलाया और पॉलीकार्प को उन्होंने कहा कि स्वेयर बाय द फॉर्च्यून ऑफ सीजर एंड रिवाइव क्राइस्ट, कहता है कि कैसर के नाम की कसम खा ले और मसीह को तजलील कर। पॉलीकार्प का आप जवाब सुनिएगा। गॉस्पेल शेप्ड माइंड जो बदल जाती है जिंदगी, तो वो फिर जवाब उनके कैसे होते हैं? वो दुनिया के मुताबिक नहीं चलती। वो जवाब क्या देता है? वो कहता है 86 years I have served him, 86 साल मैंने उसकी खिदमत की है, and he never did me wrong, उसने मुझे कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। How then can I blaspheme my king and my savior? कहते हैं कैसा है कि मैं अपने बादशाह, अपने आका, अपने खुदा के खिलाफ ब्लास्फेमी कर दूं। 86 साल तक वो मेरे साथ वफादार रहा, उसने मुझे संभाल करके रखा। प्रो कौंसल आपको पता है उसको किससे डराया? आग से डराया। उसको कहते थे हम तुझे आग में जिंदा जला देंगे। उसका जवाब सुनिएगा। वो कहता है you threaten me with a fire that burns for an hour and after a while is extinguished। वो कहता है तुम मुझे उस आग से डराते हो जो तुम जलाओगे, थोड़ी देर के बाद वो आग कुछ लम्हों तक चलेगी, कुछ घंटों तक चलेगी, लेकिन उसके बाद वो बुझ जाएगी। वो कहता है बट यू डोंट नो अबाउट द फायर ऑफ द कमिंग जजमेंट ऑफ इटर्नल पनिशमेंट रिजर्व्ड फॉर द अनगॉडली। उनके मुंह पे खड़ा होकर के उनको कह रहा है कि तुम लोगों से अपनी आग से वाकिफ नहीं हो, जो ना बुझने वाली आग है, और वो खुदा की बादशाही के दिन वो आग जिस दिन आएगी और उन लोगों के लिए होगी जो अनगॉडली है, खुदा से ना वाकिफ है, खुदा से दूर है, अनरीजनरेट है, जिनकी जिंदगी नहीं बदली, जहन नहीं बदला, और जो अपने गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं, उनको वो आग अब्दियत के लिए हलाक कर देगी। वो उस आग से नहीं डरा। और आगे उसके अल्फाज सुनिएगा। वो कहता है But why do you wait? Bring on what you will. किस लिए इंतजार करते हो? लेकर के आओ आग, जला दो मुझे, क्योंकि उसके पास वही उम्मीद है जो उम्मीद हमने शुरू में खड़े होकर के पढ़ी, जो स्टीफनस कहता है मैं आसमान को खुला और खुदा को उसके जलाल के साथ देखता हूँ। ये है गॉस्पेल शेप्ड माइंड की उम्मीद, जिस उम्मीद को हमसे कोई छीन नहीं सकता। गॉस्पेल के वसीला से बदली गई जिंदगी वो आपको करेज देती है कि आप खुदा का इनकार ना करें। उसको वो मौका दे रहे थे ना, कहता स्वेयर बाय द सीजर एंड रिवाइव क्राइस्ट। तो कहता है नहीं, 86 years I have served him, 86 साल मैंने उसकी खिदमत की है और उसने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसके खिलाफ बोल जाऊं? हम अपनी जिंदगियों के अंदर बातों के अंदर उस पाक खुदा के खिलाफ क्या कुछ नहीं करते। आज वो करेज, वो बोल्डनेस, क्या ये खुशखबरी मेरे लिए और आपके लिए उतनी ही रियल नहीं है? क्या इस खुशखबरी का रिवॉर्ड बदल गया है कि हम खुदा के होंगे, वो हमारा खुदा होगा? फिर मसला कहां पर है? मसला खुदा को जानने की कमी के अंदर है। इंसान अपनी सोच से अपने लिए अपने ही जैसा खुदा बनाएगा, लेकिन जब इंसान बाइबल के खुदा को देखता है, बाइबल का खुदा हमारी सोच से बना है। वो टाइम लिमिट से बियॉन्ड है, वो टाइम की कैद के अंदर नहीं, वो किसी चीज की कैद के अंदर नहीं, क्योंकि वो बाइबल का खुदा और बड़ा खुदा है। हमें उसको जानने की जरूरत है। मैंने कहा था कि गॉस्पेल शेप्ड माइंड जो होता है वो हेवनली माइंड होता है। वो हेवन को इसलिए देखता है क्योंकि उसको पता है गॉस्पेल क्या है। गॉस्पेल ये है, मसीह ने हमारे गुनाहों के वास्ते जान दी, हमारी मौत को उसने ले लिया और अपनी जिंदगी मसीह ने हमें दी,
اب جو ہم زندگی گزارتے ہیں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتے ہیں جس نے ہم سے محبت کی ہے، اور محبت کے اندر مسیح نے کہا، کیا کہا تھا؟ دیکھو میں پھر تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، میرے باپ کے پاس بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ مسیح کی یہ امید ہمارے ساتھ ہے۔ ذرا آئیے تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں کہ گاسپل شیپ مائنڈ اور کیا کیا کام کرتا ہے۔ دوسرا پطرس پہلا باب 14 اور 15 آیت ذرا پڑھیے گا۔ دوسرا پطرس پہلا باب 14 اور 15 آیت کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے بتانے کے موافق مجھے معلوم ہے کہ میرے خیمہ کے گرائے جانے کا وقت جلد آنے والا ہے، بس میں ایسی کوشش کروں گا کہ میرے انتقال کے بعد تم ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھو۔ یہ پطرس کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ میں بہت جلد مر جانے والا ہوں، میں بہت جلد مر جانے والا ہوں، کہتا ہے لیکن میں ایسی کوشش کروں گا کہ میرے انتقال کے بعد تم ان باتوں کو یاد رکھ سکو۔ اگر آپ اس کے کانٹیکسٹ میں پڑھیں، وہ ان کو خوشخبری برگزیدگی کے بارے میں بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اپنے مرنے سے، یہ ایک گاسپل شیپ ہارٹ کی ڈیزائر ہوتی ہے، گاسپل شیپ مائنڈ کا کام ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا گاسپل شیپ مائنڈ وہ مائنڈ ہے جو کہ گاسپل کے وسیلہ سے بدلا گیا ہے، جو گاسپل کے لیے بدلا جاتا ہے، اور وہ گاسپل کے لیے آپ کو جینے مرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ گاسپل شیپ مائنڈ کی خوبصورتی ہے۔ اور وہ دیکھیں، اس کو پتا ہے وہ مرنے والا ہے، وہ کہتا ہے میں ایسی کوشش کروں گا کہ تم میرے مرنے کے بعد بھی ان باتوں کو کیا رکھ سکو، یاد رکھ سکو۔ تو کیسی کوشش اس شخص کی زندگی کے اندر ہوگی۔ جان نیوٹن اپنی زندگی کے آخری، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب گاسپل کسی کو زندگی کو بدلتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر وہ کیا اثر ڈال دیتا ہے۔ جان نیوٹن جس نے امیزنگ گریس گیت لکھا تھا، اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر وہ سکیزوفرینک پیشنٹ بن گیا تھا، اور سکیزوفرینک پیشنٹ تھا، اور اس کے اندر اس کی میموری جو تھی وہ ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر وہ ایک بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے although my memory is fading، بے شک میری میموری جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ کہتا ہے but I remember two things، مجھے دو چیزیں یاد ہیں، دو باتیں یاد ہیں، اور جن کو میں بھول نہیں پا رہا ہوں۔ وہ دو باتیں کیا ہیں کہ I am a great sinner and Christ the great savior، کہتا ہے میں ایک بڑا گناہگار ہوں اور مسیح جو ہے میرا نجات دہندہ ہے۔ یہ ہے گاسپل شیپ مائنڈ، جدھر وہ سب کچھ بھولتا چلا جا رہا ہے لیکن وہ یہ بات نہیں بھول رہا کہ میں کتنا بڑا گناہگار ہوں اور مسیح میرا بڑا نجات دہندہ ہے جس نے اپنے فضل کے وسیلہ سے مجھے بچا دیا۔ یہ ہے گاسپل شیپ مائنڈ۔ وہ خدا کو نہیں بھول رہا، بیماری کی باعث بھی وہ خدا کو نہیں بھول رہا۔ کیسی بڑی بات ہے، اس نے اپنے آپ کو اپنی زندگی کے اندر کتنا یاد کروایا ہوگا کہ خدا نے تیرے لیے کیا کر دیا، اب تو اس کا ہے۔ کوشش ایرینیس نہیں، اگنیشیس جو تھا اس نے بھی مسیحیت کا پرچار کیا رومی حکومت کے ٹائم، اور اس کو بھی پکڑ لیا گیا، قید کر لیا گیا رومی حکومت کے اس میں دور حکومت میں۔ گاسپل کے وسیلہ سے اس کی زندگی بھی بدلی تھی، اور جب اس کو قید کر لیا گیا تو آپ کو پتا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کو شیروں کے سامنے، جنگلی درندوں کے سامنے اس کو پھینک دیا گیا، اور جب وہ درندوں کے سامنے تھا خوشخبری سناتا تھا، ڈرتا نہیں تھا، نہ ڈر نہیں تھا۔ جب وہ قید کے اندر تھا تو وہ پولی کارپ کو لیٹر لکھ رہا تھا، وہ دوسرے مسیحی جو کلیسیائیں تھیں ان کو لیٹر لکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا یونٹی کو بحال رکھنا، یونٹی ہماری کرائسٹ کے وسیلہ سے، مسیح کے وسیلہ سے یونٹی ہے جیل کے اندر ہے، یونٹی کی باتیں ان کو پھر بھی بتا رہا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا اپنی زندگی کے مقصد کو۔ گاسپل کے وسیلہ سے زندگی بدلی ہوئی تھی، لیکن جب پکڑا گیا کلوسم کے اندر پھر سے رومیوں نے اس کو پکڑ لیا اور جنگلی شیر چھوڑے اور پورا روم بیٹھ کر کے دیکھ رہا۔ اور آپ کو پتا ہے وہ کیا دعا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری خواہشیں مسلوب ہو گئی ہیں، میرے جسم کی گرمی بھی ختم ہو گئی ہے، میرے اندر ایک اطمینان گہری ندی چل رہی ہے اور سرگوشی کر رہی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے کہ باپ کے پاس آیا۔ بے شک میں تلوار کے نزدیک ہوں، مگر بڑی بات یہ ہے کہ میں کچھ ہی وقت میں خدا کے ساتھ ہوں گا۔ تلوار میری گردن اڑا دے گی لیکن میں اس وقت میں خدا کے ساتھ ہوں گا۔ کہتا ہے جنگلی درندوں، شیروں نے اس کو گھیر لیا تھا، کہتا ہے جنگلی درندوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے مگر میں خدا کی صحبت میں ہوں۔ اب جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوتا ہے یسوع مسیح کے نام میں ہونے دو تاکہ ہم اس کے دکھوں کو بہتر طور پر سمجھے۔ کہتا ہے اگر مجھے شیر کھا رہے ہیں اس وقت میں تو یہ بھی میرے ساتھ ہونے دو، کیونکہ یہ ان دکھوں کے سامنے کچھ نہیں ہے جو دکھ مسیح نے میرے لیے صلیب پر سہ لیے۔
آج ہم مسیح کے دکھوں کو کتنی بہترین طور سے اور بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں. آج ہم مسیح کے دکھوں کو, وہ کہتا ہے کہ بس اب ہونے دو, کہتا ہے اگر شیر مجھے کھا رہے ہیں کھانے دو, اس لیے کھانے دو تاکہ میں مسیح کے دکھوں کو سمجھ سکوں کہ مسیح نے میرے لیے صلیب پر کیا دکھ سے, میرے حصے کی جہنم کو مسیح نے صلیب پر سہ لیا. وہ کہتا ہے تاکہ ہم اس کے دکھوں کو بہتر طور پر سمجھیں اور اس کے ساتھ دکھ سہیں. میں ہر دکھ کو خدا کے فضل سے برداشت کر سکتا ہوں اگر وہ مجھے اس قابل بنائے. اس وقت میں اپنے آپ کو گندم کے دانوں کی طرح سمجھ رہا ہوں, اور وحشی درندے مجھے گندم کے دانوں کی طرح پیسیں گے, اور تب تک پیسیں گے جب تک میں سفید آٹے کی عمدہ روٹی نہ بن جاؤں جو مسیح کے سامنے پیش کی جائے گی. یہ ہے گاسپل شیپ. وہ مرنے سے بھی نہیں ڈرتا. کہتا ہے جنگلی درندے جو ہے مجھے اپنے دانتوں کے نیچے پیس دیں گے, بالکل اسی طرح سے جس طرح گندم کے دانے جو ہے چکی کے نیچے پیس دیے جاتے ہیں اور سفید آٹا اندر سے نکلتا ہے اور اس آٹے کی ہم روٹی بناتے ہیں. کہتے ہیں مجھے اس وقت تک پیسیں گے, مگر اچھی بات ہے مجھے پیسیں گے, میں اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو جاؤں. یہ ہے گاسپل شیپ مائنڈ جو کہ آپ کو خدا کے لیے زندگی گزارنے کے لیے مجبور کرتا ہے. چھڑ دو دنیا دیا گلاں, چھڑ دو دنیا دیا فکراں, کیڑے کماں چ لگے, گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. آخری 3 آیتیں پڑھیں گے اور پھر ہم ختم کریں گے. اعمال 4 باب, میں چاہوں گا کہ ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں. اعمال 4 باب 18ویں آیت سے لے کر کے 20ویں آیت تک. گاسپل شیپ مائنڈ آپ کو کریج دیتا ہے. گاسپل شیپ مائنڈ آپ کو خدا کی پاکیزگی دکھاتا ہے, اس کے مطابق زندگی گزارنے کا فضل دیتا ہے, اس کے لیے جینے کا فضل دیتا ہے, اور آپ کو ہیون دکھاتا ہے. ہیون اس لیے دکھاتا ہے کیونکہ وہاں پر خدا ہے. گاسپل شیپ مائنڈ ہیون آپ کو دکھاتا ہے. اعمال 4 باب 18ویں سے 20ویں آیت تک. اعمال 4 باب, میں چاہوں گا کہ میں پڑھوں اور آپ میرے پیچھے پیچھے اس کو پڑھیں. اعمال 4 باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر کے 20ویں آیت تک. بس انہیں بلا کر تاکید کی کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا, مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو. آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں, کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہے. گاسپل شیپڈ مائنڈ گاسپل کے لیے جیتا ہے, اور وہ گاسپل کی پروکلیمیشن کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں خدا کا حکم تمہارے حکم سے ہمارے لیے بڑا نہیں ہے. آپ بھی اگر تو گاسپل کے وسیلہ سے آزاد کیے گئے ہیں, گاسپل نے آپ کی زندگی کو بدلا ہے, تو گاسپل کو پروکلیم کرنا ہر ایماندار کی ذمہ داری ہے, ہر ایماندار کا کام ہے. اعمال 5 باب 27ویں آیت سے 29ویں آیت تک. اعمال اس کا 5 باب اس کی 27ویں تا 29ویں آیت. پھر انہیں لا کر عدالت میں کھڑا کر دیا, اور سردار کاہن نے ان سے یہ کہا کہ ہم نے تو تمہیں سخت تاکید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا, مگر دیکھو تم نے تمام یروشلم میں اپنی تعلیم پھیلا دی, اور اس شخص کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو. پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے. یہ ہے گاسپل شیپ مائنڈ جو گاسپل کے لیے جیتا ہے, جو گاسپل کے وسیلہ سے بدلا ہے. اعمال 5 باب 40ویں آیت سے لے کر کے 42ویں آیت. اعمال اس کا 5 باب اس کی 40ویں آیت سے 42ویں آیت.
انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو پاس بلا کر ان کو پٹوایا اور یہ حکم دے کر چھوڑ دیا کہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا. بس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے. اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق. یہ ہے گاسپل شیپڈ مائنڈ جو گاسپل کے لیے جیتا ہے, گاسپل کے مطابق جیتا ہے, گناہ سے نفرت کرتا ہے, خدا کی ذات کو یاد رکھتا ہے, خدا کی ذات کو بھولتا ہے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, میں آپ کو یہی انکریج کروں گا کہ آج ہمیں بیماری سے شفا سے پڑھ کر کے گاسپل کے وسیلہ سے ریجنریٹ ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم گاسپل کے وسیلہ سے نہیں بدلیں گے تو ہم ابدی موت میں ہوں گے, اور اگر ہم ابدی موت میں ہوں گے تو ہم خدا سے دور ہوں گے. لیکن گاسپل شیپڈ مائنڈ جو ہے وہ گاسپل کے مطابق زندگی گزارتا ہے, اور گاسپل کے مطابق زندگی ہی نہیں گزارتا, خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے. کیونکہ کلام ہمارے ٹیکسٹ میں جو تھا وہ یہی تھا کہ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے تو ہمیں نور میں چلنا ہے. اگر ہمیں نور میں چلنا ہے تو نور میں چلنا کس چیز سے ظاہر ہوگا؟ جب ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے. جب ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اسی سے دنیا جانے گی کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے, ہم اس کے ہیں, وہ ہمارا ہے. اور ایک وقت آئے گا جب ہم اس جسم کو چھوڑ کر کے جلالی بدنوں میں ہوں گے, اور اس وقت میں کیا ہوگا؟ ہمارے ماتھوں پر اس کا نام لکھا ہوا ہوگا, ہم اس کے لوگ ہوں گے, وہ ہمارا خدا ہوگا. جیسے استفنس مرتے ہوئے اس زندہ امید کو اپنے نظروں کے ساتھ دیکھ رہا ہے, میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ اس امید کو تلوار آپ سے چھین نہیں سکتی ہے, بلکہ آپ کو اس ٹائم میں بھی کریج ہوگی کہ اب جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہونے دو, کیونکہ ہم گاسپل کے وسیلہ سے زندہ خدا کے سامنے ہوں گے. گاسپل شیپڈ مائنڈ یہی ہے جو کہ گاسپل کے وسیلہ سے بدلتا ہے, گاسپل کے لیے آپ کو جینے کے لیے. خدا کا فضل, خدا کے اطمینان آپ کے ساتھ.